لبے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم 10th کلاس فزیکل سائنس سے بہت ہی اہم ٹاپک برف رواں یعنی الیکٹرک کرنٹ سے کہتے ہیں، برف رواں سے ایک بہت ہی اہم تجربہ ایکسپیریمنٹ، وہ ہے موصل کی مزاحمت پر اثر انداز ہونے والے عوامل۔ موصل کی مزاحمت پر اثر انداز ہونے والے عوامل یعنی فیکٹرز افیکٹنگ آن ریزسٹنس آف اے کنڈکٹر، اس کے تعلق سے آج ہم معلومات حاصل کریں گے۔ اور اس اہم تجربے کو پیش کیا ہے جناب محترم سرفراز صاحب مدرس نے، اس تجربے کو پیش کیا ہے۔ آپ ضرور اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ موصل کی مزاحمت پر کون کون سے عوامل اثر انداز ہوتے ہیں۔ محترم جناب سرفراز صاحب مدرس نے اس تجربے کو پیش کیا ہے۔ چلیے ہم آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ اس تجربے سے پہلے ہم چند اصطلاحوں کے تعلق سے معلومات حاصل کریں گے۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم معلوم کرتے ہیں الیکٹرک کرنٹ یعنی برف رواں سے کہ آج کا ہمارا تجربہ ہے۔ موصل کسے کہتے ہیں اور مزاحمت کسے کہتے ہیں، سب سے پہلے ہم سمجھیں گے۔ سوال ہے کہ موصل کسے کہتے ہیں، کیونکہ یہ موصل کے تعلق سے پہلے ہم کو معلوم ہونا ضروری ہے۔ آپ ان اصطلاحوں کو اچھی طریقے سے یاد کر لیں اور سمجھ لیں۔ تو موصل کی تعریف اس طرح ہے کہ ایسی اشیاء جو برقی توانائی کو مبدا یا بیٹری سے بلب تک منتقل کرنے میں مدد دیتے ہوں، موصل کہلاتے ہیں۔ ایسی اشیاء جو برقی توانائی کو مبدا یا بیٹری سے بلب تک منتقل کرنے میں مدد دیتے ہیں، موصل کہلاتے ہیں۔ یعنی ایسی شے جو اپنے اندر سے برقی روح کو گزرنے دیتی ہے، وہ تمام اشیاء یہاں پر موصل کہلاتی ہے۔ مثلا موصل کی مثال ہے لوہا، تانبا وغیرہ، ایسے بہت سارے موصل موجود ہے قدرت میں۔ لوہا، تانبا یہ ایسے موصل ہیں جن سے برقی روح آسانی سے گزر سکتی ہے۔ یہ ہے موصل کی تعریف یعنی کنڈکٹر کی تعریف ہے، جس میں سے برقی روح یعنی الیکٹرک کرنٹ آسانی سے گزر سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ مزاحمت کسے کہتے ہیں، ریزسٹنس کسے کہتے ہیں۔ موصل کی مزاحمت سے کیا مراد ہے، ریزسٹنس سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب اس طرح ہے، موصل کی مزاحمت سے مراد موصل میں پائے جانے والے الیکٹران کی حرکت میں رکاوٹ پیدا کرنا ہے۔ یعنی موصل کی مزاحمت موصل میں پائے جانے والے الیکٹران کی حرکت میں رکاوٹ پیدا کرنا ہے، اور وہ مادہ جو الیکٹران کی حرکت میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے وہ مزاحم ریزسٹر کہلاتا ہے۔ یعنی مزاحمت الیکٹرک کرنٹ کے بہاؤ میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے، اس کا مطلب ہے۔ اور اب ہم ریزسٹنس کی یہ علامت ہے، مزاحمت کی علامت ہے، اور اس طریقے سے یہ مزاحمت کی علامت کو استعمال کیا جاتا ہے۔ مزاحمت کی اکائی اوم ہے اور اس کی علامت ہے، مزاحمت کی اکائی اوم ہے، جس کو عزیز طلباء و طالبات، اب ہم الیکٹرک کرنٹ یعنی برف رواں سے موصل کی مزاحمت پر اثر انداز ہونے والے عوامل کون کون سے ہیں، سب سے پہلے ان کے تعلق سے معلومات حاصل کریں گے۔ نمبر 1 ہے موصل کا طول یعنی لینتھ آف اے کنڈکٹر۔ موصل کا طول لینتھ آف اے کنڈکٹر، یہ بھی موصل کی مزاحمت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ دوسرا ہے موصل کا تراش عمودی کا رقبہ یعنی کراس سیکشن ایریا آف اے کنڈکٹر جسے کہا جاتا ہے، یہ بھی موصل کی مزاحمت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ یعنی تراش عمودی سے مطلب ہے کہ یہاں پر موصل کی موٹائی۔ اس کے بعد ہے مادے کی خاصیت یعنی نیچر آف میٹیریل پر بھی موصل کی مزاحمت منحصر ہوتی ہے۔ نیچر آف میٹیریل، مادے کی خاصیت۔ آخر میں ہے یہاں پر تپش پر بھی موصل کی مزاحمت کا انحصار ہوتا ہے۔ ان 4 عوامل پر موصل کی مزاحمت اثر انداز کرتی ہیں۔ اس کو اب ہم تجربے کے ذریعے سیکھیں گے۔ اس سے پہلے ہم موصل کا طول، موصل کا تراش عمودی کا رقبہ، مادے کی خاصیت اور تپش سے کس طرح موصل کا طول، موصل کا تراش عمودی کا رقبہ، مادے کی خاصیت، تپش موصل کی مزاحمت پر اثر انداز ہوتے ہیں، ہم ایک مرتبہ اسے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے موصل کا طول لینتھ آف اے کنڈکٹر جو ہے
वो मौसिल की मज़ाहिमत रास्त मुतनासिब होती है इसके तूल एल के, जबकि तराशे उमूदी का रकबा तपिश और तफावत ख्वाह मुस्तकिल हो। यानी इसका मतलब है आर रास्त मुतनासिब है एल के, यानी अगर मौसिल के तूल में इजाफा हो तब उसकी मज़ाहिमत में भी इजाफा होता है। इस बात को हम तजुर्बे के जरिए आगे सीखेंगे, जिसको जनाब सरफराज साहब ने पेश किया है। आर रास्त मुतनासिब होता है एल के, यानी अगर मौसिल के तूल में इजाफा किया जाए तब इसकी मज़ाहिमत में भी इजाफा होता है, अगर इसके तूल में कमी की जाए तब मज़ाहिमत में भी कमी वाक़ होती है। ये इसका मतलब है आर रास्त मुतनासिब होता है एल के, यानी अगर मौसिल के तूल में इजाफा हो तब मज़ाहिमत में भी इजाफा होता है। इसके बरक्स अगर मौसिल के तूल में कमी हो तब इसकी मज़ाहिमत में भी कमी होती है। इसको आगे हम तजुर्बे के जरिए इस फर्स्ट पॉइंट को देखेंगे। चलिए अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं। आप जरूर इन तमाम नुकात को नोट करते जाएं। मौसिल का तराशे उमूदी का रकबा यानी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए कंडक्टर, ये किस तरीके से मौसिल की मज़ाहिमत पर असरअंदाज होता है। मज़ाहिमत तराशे उमूदी के रकबे के बिलक से मुतनासिब होती है। इसका मतलब ये है आर बिलक से मुतनासिब है ए के, यानी आर इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं आर रास्त मुतनासिब है 1/a के, यानी अगर रकबे में इजाफा हो तब मज़ाहिमत में कमी वाक़ होती है, यानी अगर रकबे में कमी हो तब मज़ाहिमत में इजाफा होता है। इस तरीके से मज़ाहिमत तराशे उमूदी के रकबे के बिलक से मुतनासिब होती है। इस सेकेंड पॉइंट को भी हम तजुर्बे के जरिए आगे समझेंगे। यानी तराशे उमूदी के रकबे के बढ़ने से मज़ाहिमत घटती है और तराशे उमूदी के रकबे के घटने से मज़ाहिमत बढ़ती है। इस सेकेंड पॉइंट को भी हम आगे तजुर्बे के जरिए सीखेंगे। आप जरूर इस पॉइंट को नोट करें। चलिए अब हम थर्ड पॉइंट की जानिब चलते हैं। वो ये है कि मादे की खासियत और मज़ाहिमत, यानी मादे की खासियत पर भी मज़ाहिमत मुनस्सिर होती है। मुख्तलिफ मादों के साथ मज़ाहिमत मुख्तलिफ होती है, यानी मौसिल की मज़ाहिमत हर मादे के लिए मुख्तलिफ होती है, किसी में कम तो किसी में ज्यादा। इस तरीके जैसा कि लोहे की मज़ाहिमत अलग होती है, इसी तरीके से अल्युमिनियम में मज़ाहिमत अलग होती है और तांबे से मज़ाहिमत अलग होती है। यानी मौसिल की मज़ाहिमत हर मादे के लिए मुख्तलिफ होती है, किसी में कम तो किसी में ज्यादा होती है। चलिए फोर्थ पॉइंट हम देखते हैं, तपिश यानी टेम्परेचर। ये भी मौसिल की मज़ाहिमत पर रास्त मुतनासिब होती है। मज़ाहिमत रास्त मुतनासिब होती है तपिश के, यानी इसका मतलब ये है आर रास्त मुतनासिब है टी के, मतलब अगर टेम्परेचर में इजाफा किया जाए तब मज़ाहिमत में भी इजाफा होता है और टेम्परेचर में कमी की जाए तब मज़ाहिमत में भी कमी वाक़ होती है। आपने इन तमाम चार नुकात को यहाँ पर अभी अभी आपने इनके ताल्लुक से मालूमात हासिल की है। अब हम इन नुकात को तजुर्बे के जरिए देखते हैं कि किस तरीके से मज़ाहिमत इन चार नुकात पर मुनस्सिर होती है। आप जरूर इस तजुर्बे को अच्छी तरीके से देखें। जहां पर लिखा गया है कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, तो यहाँ पर हमने पहला एक निक्रोम की तार ली है और वहां पर आर मुतनासिबत यल या तो आर मुतनासिब यल के बराबर लिखा है, जहां पर यल मौसिल की लंबाई है और उसे एक बरखी बल्ब से जोड़ा गया है। इसी तरह आप नीचे देख सकते हैं कि आर मुतनासिब 1/a है। यहाँ पर फर्स्ट हमने निक्रोम एक तार ली है मोटी वाली, उसके बाद में इसकी मोटाई में कमी आती जाएगी। जो दूसरी तार है वो उससे कम मोटी है, जो तीसरी तार है वो और बारीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जिस तरह इसके क्रॉस सेक्शन में कमी या ज्यादती होगी तो ये मज़ाहमत में किस तरह तब्दीली आएगी, इसका हम यहाँ पर मुतालिया करेंगे। इसी तरह डिपेंडिंग अपॉन मटेरियल, मतलब कॉपर, एल्यूमिनियम, लोहा और निक्रोम यहाँ पर यकसा लंबाई और यकसा मोटाई वाले हमने 4 तार लिए हैं और ये 4 तारों से जब हम करंट गुजारते हैं तो इनकी मज़ाहमत किस तरह बदलती है उसका हमें मुतालिया करेंगे। और इसी तरह यहाँ पर लास्ट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बारीक तार ली गई है आर मुतनासिब टी, मतलब दर्ज हरारत का इन्हसार किस तरह है, मतलब मौसिल के मज़ाहमत पर दर्ज हरारत का इन्हसार किस तरह है, ये किस तरह दर्ज हरारत के बदलने से इसकी मज़ाहमत तब्दील होती है, इसका मुतालिया करने के लिए भी यहाँ पर एक बारीक तार और यहाँ पर लाइट लगाई गई है। और इसके
करंट के लिए यहाँ पर मैंने बैटरी का इस्तेमाल किया है और बैटरी के टर्मिनल्स की मदद से हम यहाँ पर इन अवामिल को जानने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट मैंने यहाँ पर एक टर्मिनल को लगाया है एक सिरे पर और जो दूसरा सिरा है यहाँ लाइट को जोड़ने की कोशिश करेंगे। अब मैं बैटरी ऑन करता हूं। आप देख सकते हैं कि यहां पर जैसा मैंने बैटरी ऑन की है वहां पर लाइट रोशन हुआ है। अब मैं इसे निकाल रहा हूं। जैसे जैसे मैं यहां पर दूर कनेक्शन दूंगा वहां पर इसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी। इसका मतलब जिस तरह लंबाई में इजाफा होता जाएगा मोसिल की मज़ाहमत बढ़ जाएगी और रोशनी जो बल्ब से खारिज हो रही है उसकी शिद्दत में कमी आएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर रोशनी की शिद्दत इतनी है, जब मैं इसे और नजदीक लगाऊंगा तो बल्ब और ज्यादा रोशन होगा। तो यहाँ पर बल्ब की जो शिद्दत है, रोशनी की शिद्दत वो ज्यादा है। यहाँ पर लंबाई के इजाफा होने पर रोशनी की शिद्दत में कमी आएगी। ठीक है, तो इससे हम ये नतीजा निकाल सकते हैं कि जब मोसिल की लंबाई में इजाफा होगा तो इसकी मज़ाहमत में भी इजाफा होगा। नेक्स्ट यहाँ पर 3 निक्रोम के तार लिए गए हैं। फर्स्ट एक मोटी है, जो दूसरे नंबर की है वो उससे कम मोटी है, तीसरे नंबर की बहुत ही बारीक है। तो यहाँ पर हम इसका मुतालिया करेंगे। तो बैटरी के टर्मिनल को, एक बैटरी के टर्मिनल को मैंने यहाँ पर लाइट से जोड़ा है। आप देख सकते हैं कि जो पहली तार है वो रोशन हो रही है। ठीक है, अब जब क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा तो आप देखेंगे कि इसकी शिद्दत में थोड़ी कमी आएगी। ठीक है, यहां पर तीसरी तार जो उससे बारीक है उसे मैंने जोड़ने की कोशिश की है। आप देख रहे हैं कि इसमें रोशनी की शिद्दत और कम है, मतलब तार का जो मोटाई में कमी आएगी तो वहां पर मज़ाहमत ज्यादा हो जाएगी और रोशनी की जो शिद्दत है वो कम हो जाएगी। इसी तरह यहां पर हमने 3 अलग अलग तार लिए हैं। आप देख सकते हैं एक तार कॉपर है, दूसरी एल्यूमिनियम है, तीसरी लोहा है और चौथी निक्रोम जो कि एक भरत है। इनसे जब हम करंट गुजारते हैं तो रोशनी की शिद्दत में किस तरह तब्दीली वाक़ा होगी इसका हम मुतालिया करेंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखो, फर्स्ट मैंने कॉपर के तार पर यहाँ पर टर्मिनल को रखा है। आप देख रहे हैं कि रोशनी की शिद्दत बहुत ज्यादा है, इसका मतलब कॉपर एक अच्छा मोसिल है। ठीक है, इसी तरह मैं दूसरा कनेक्शन जो है एल्यूमिनियम की तार को दूंगा। तो आप देख रहे हैं कि एल्यूमिनियम की तार से भी करंट गुजर रहा है बट रोशनी की शिद्दत कॉपर से कम है। इसका मतलब जो बरखी ईसालियत है वो कॉपर की ज्यादा है, एल्यूमिनियम की कम है। अब मैं लोहे को जोड़ने की कोशिश करूंगा। आप देखेंगे कि यहां पर शिद्दत में और थोड़ी कमी आ गई। इसका मतलब क्या है कि जो लोहा है इसकी बरखी ईसालियत एल्यूमिनियम से कम है। इसके बाद मैं यहां पर निक्रोम को जोड़ने की कोशिश करूंगा। आप देखेंगे कि निक्रोम के अंदर जो रोशनी की शिद्दत आ रही है, मतलब निक्रोम तार से जब रोशनी गुजारते हैं तो रोशनी की जो शिद्दत आ रही है इसमें और थोड़ा कमी आ गई। तो इससे पता चलता है कि जो निक्रोम की जो मज़ाहमत है वो कॉपर से ज्यादा है। ठीक है, इसी तरह हम जो चौथा उमूर है दर्ज हरारत का इन्हसार देखेंगे, मतलब मौसिल की मज़ाहमत पर दर्ज हरारत का क्या असर होता है उसे हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मैंने एक बारीक तार ली है और तार को एक सिरे को बल्ब से और दूसरे सिरे को हमने बैटरी से जोड़ना है। तो यहाँ पर मैं बैटरी से जोड़ने की कोशिश करूंगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बल्ब रोशन हुआ है। अब इस बारीक तार को हमें गर्म करना है, इस बारीक तार को हमें गर्म करना है। तो जब हम गर्म करेंगे तो इस बल्ब की रोशनी जो आप देख रहे हैं इस रोशनी की शिद्दत में कमी वाक़ा होगी। तकरीबन इसे 5 या 10 मिनट तक गर्म करते हैं। तो जब हम गर्म करते हैं तो हमें
ये जो बल्ब रोशन हुआ है, इसकी जो रोशनी खारिज करने की जो शिद्दत है उसमें बदरजा स्लोली ये जो शिद्दत है इसकी कम होती हुई नजर आएगी। क्योंकि ये यहाँ पर मैं सिर्फ वीडियो बना रहा हूं, इसलिए मैं यहाँ पर सरसरी तौर पर आपको बताऊंगा कि जिस तरह दर्ज हरारत में इजाफा होगा उस तरह मोसिल की मज़ाहमत में भी इजाफा होगा। अब मोसिल की मज़ाहमत में इजाफा होने की वजह से ये जो बल्ब है इससे जो रोशनी खारिज हो रही है उसकी शिद्दत में भी कमी आएगी। तो फिर एक मरतबा मैं यहाँ पर अपने इस पॉइंट्स को मैं दोहराने की कोशिश करूंगा जिसका हमने मुतालिया क्या है कि बरक़ी मज़ाहमत का जो इन्हसार है ये चंद उमूर पर है, जैसा कि यहां पर है तार या मोसिल की लंबाई पर है। मोसिल की लंबाई पर इजाफा होगा, अगर मोसिल की लंबाई बढ़ जाएगी तो तार की मज़ाहमत में भी इजाफा होगा। तार या मोसिल के क्रॉस सेक्शन पर, तो ये जिस तरह क्रॉस सेक्शन या तो इसकी मोटाई, अगर तार की मोटाई अगर ज्यादा है तो इसकी मज़ाहमत कम है। दर्ज हरारत पर, दर्ज हरारत के बढ़ने से मज़ाहमत में भी इजाफा होगा। तो ये चंद अवामिल थे जिन पर बरक़ी मज़ाहमत का इन्हसार है। तो बरक़ी मज़ाहमत का इन्हसार इन चंद अवामिल पर है। अस्सलामु अलैकुम।